प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ best wishes to all of you appearing in CET combined entrance test for the admission in DLED। स्टूडेंट ਅੱਜ ਆਪਾਂ मैथमेटिक्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ MCQs ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਸ ਮੈਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ place value of 6 in 65387201। एक गल स्टूडेंट देखो कि सब तो पहला तो यदी प्लेस है कित्थे। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख, 10 लख ते करोड़। मतलब वो पोजीशन जी साड़ी हैगी है करोड़वीं पोजीशन ते है। ठीक है ना। हुण देखना कि जिस प्लेस ते है उस नंबर लिख लो, साडा 6 दी असीं देखनी है। 6 लिख लिया तो मल्टीप्लाई उहनूं कर देना है 1 करोड़ दे नाल। 1 करोड़ विच स्टूडेंट 7 जीरोआं हुंदियां जी। ठीक है ना। इहदा मतलब साडा आंसर इत्थे हो जाएगा सी। हुण मैं तुहाडी इत्थे कन्फ्यूजन एक दूर कर देना है कि पता किवें लगदा किन्नियां जीरो हुंदियां। ठीक है ना। जिवें इकाई च तो कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ 1 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 × 1 ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 0 ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ 0, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ 0 ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 10 ਦੀ 2, ਦੇਖੋ 100, ਇਹ 100 ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਵੀ 2 ਹੈਗੀ 10 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 1000 ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3 ਹੀ 0 ਤੇ 3 ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10,000 ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 10 ਦੀ 5 ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 6 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 6 ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 7। ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 6। ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਜਾਨੀ 6 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੀ ਹੈ, 5 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ, 2 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, 1 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, 4 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਤੇ 0 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 6 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਜੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 'ਚ गलती नहीं करनी। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू की होंगी है, फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। यानी कि 9 दी असी 9 लिख लिया एंड 6 की फेस वैल्यू बई 6 ही है तो दोवां का की करना, आप जोड़ करना है तो जोड़ कितना हो गया 15 हो गया। क्योंकि अज के क्वेश्चन अपने आसान होंगे, इस करके असी आसान तो शुरू करांगे तो चंगे रहांगे, थानू अगे जाके समझ आउंदी जाएगी।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ 121012 is divided by 12 the remainder is, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000 ਤੇ ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ 1,21,012, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? 12 ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ, 2 ਹੋਏਗਾ, 3 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 4 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ ਗਿਆ, 12 ਏਕਮ 12। ਹੁਣ 1 ਤਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 12 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਡਿਜਿਟ ਉਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ 10 ਹੈ ਤੇ ਉਹ 12 ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1 0 ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਡਿਜਿਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ 12 8 96 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 12 8 96 ਹੋ ਗਿਆ। 101 ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 96 ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 5, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 12 ਚੌਕੜ 48 ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 12 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇ 4। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ੈਂਟ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਮੈਥਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈੱਟ ਆਫ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ। Question number 5 is the sum of place value of 2 in 2424 is ਜਾਂ 2424 is। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅੰਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ? 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ 2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਹੈਗਾ 4, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 1 0 ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਡੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ 2s ਇਨ 2424 ਇਜ਼। ਪਹਿਲੇ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 2000 ਹੈ, ਦੂਸਰੇ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 2 × 10 ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 20। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 200 ਤੇ 20। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪੇਅਰ of numbers which are relatively prime to each other। ਸੋ ਟੁਡੇ ਨੰਬਰ relatively prime ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ greatest common divisor GCD ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ GCD ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, greatest common divisor, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ HCF highest common factor, ਲਘੁੱਤਮ ਮਹੱਤਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਹ ਅਗਰ 1 ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਪੇਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ relatively ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 17 ਚੌਕੀ 68 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 17 5 85। ਇਹ 17 ਕਾਮਨ ਹੈ, 1 ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ 13 5 65 ਤੇ 13 7 91, ਇਹ 'ਚ 13 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਹੈਗਾ 92 ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਈਏ ਤੇ 23 ਚੌਕਾ 92 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 17 5 85 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 92 ਬਣਨਗੇ 2 × 2 × 23, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 85 ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ 17 5 85। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 × 2 × 23 ਜੀ, ਤੇ 85 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 17 5 85। ਇਹਨੂੰ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 1, ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਕਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਧਿਆਨ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ 1 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 17 ਛਿੱਕਾ 102 ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 17 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 17 9
153, इस करके ये साडा आंसर नहीं हो सकता। इसलिए टेबल आने जरूरी है, नहीं तो कोई गल नहीं, डिवाइड करके प्राइम फैक्टर बना के देख सकते हो। आप हर चीज़ तुहानूं सिखावांगे, पर जिवें जिवें मेरे को स्पेस अवेलेबल होगी मैं तुहानूं डिटेल च दसदा जाऊँगा जी, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सैकेंड प्राइम नंबरस। प्राइम नंबर जरूर तुहानूं पता होने चाहिए, ठीक है ना। पहला प्राइम नंबर किहड़े नंबर हुंदे आ जी? ਉਹ नंबर जिन्हां दे सिर्फ दो ही फैक्टर होण, एक 1 ते एक ਉਹ नंबर खुद, जानी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ नंबर 1 है ये ना प्राइम है तो ना ही कंपोजिट है। ਜਿਹੜਾ 2 नंबर है ना 2, दिस इज प्राइम, क्यों? क्योंकि ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਨਾਲ डिवाइड ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ 1 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ डिवाइड नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ दूसरा नंबर 3 भी प्राइम है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ डिवाइड ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ 1 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਓ ਲੱਭ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 5 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, डिटेल डिस्कस भी आएगी, ठीक है ना, पर आएगी हले टाइम पा के जी, ठीक है ना। पहला सौखे सम है तो बहुत डिटेल चंगी नहीं लगती। नैक्सट क्वेश्चन है 2/3 इज ए रैशनल नंबर। बिल्कुल सही है। रैशनल नंबर किहड़े हुंदे स्टूडेंट? ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये देखो p/q, p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 10, इस फॉर्म च लिखा। दूजी गल, ये पहली गल सी। दूसरी कि p ते q दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखो 2 भी इंटीजर है तो 10 भी इंटीजर। किहड़े हुंदे आ? 0 तो इधर नूं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, तो इधर नूं -1 -2 खब्बे पासे नूं -3 -4 एंड सो ऑन। साढ़े 2 ते 3 दोनों ही सज्जे पासे पैंदे हैगे, दोनों ही इंटीजर हैगे। तो एक डिनोमीनेटर जिहड़ा नीचे है क्यों, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों गल्लां पूरियां, एक तो p/q दी फॉर्म च होवे, एक p ते q दोनों इंटीजर होण, ते तीजा जिहड़ा डिनोमीनेटर है वो 0 ना होवे, तो वो नंबर रैशनल होएगा। अगर इन्हां तिन्नां विचों कोई चीज़ फेल हो जाती है तो वो नंबर रैशनल नहीं होएगा, वो किहड़ा होएगा? वो इररैशनल नंबर होएगा। हुण इस नंबर वाल आ जाओ, ये नंबर p/q दी फॉर्म तो हैगा ते नीचे 0 भी है नहीं, बिल्कुल सही गल है, दो गल्लां पूरियां हो गईयां। पर तीजी जिहड़ी विचकारली गल सी किहड़ी कि p जिहड़ा है वो इंटीजर होना चाहिए, इत्थे तो p इंटीजर है नहीं, क्योंकि इंटीजर किहड़े हुंदे आ 0 1 2 3 4, 2 का वर्गमूल तो आया ही नहीं। इवें साडा 3 का वर्ग, ये दोनों ही इंटीजर नहीं है, एक भी ना होंदा तो असीं कहना सी ये नंबर रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं तो फिर किहड़ा नंबर है? इररैशनल नंबर है। बी इज द आंसर जी, ठीक है। नंबर तो हैगा ही है, ये नहीं असीं कह सकते। तो नैचुरल नंबर तुहानूं पता किहड़े हुंदे आ 1 2 3 4 5, वो है ही नहीं गा, इस करके आंसर तो वैसे रिजेक्ट सी, ठीक है ना। हाँ, इन्हां दोवां तुहानूं डाउट सी, वो आपां तुहाडा कटता, क्योंकि ये नंबर ए रैशनल सी पर ए इररैशनल नंबर है। ये साडा सी सैकेंड सैट ऑफ 4 क्वेश्चंस। हुण असीं नैक्सट सैट ऑफ 4 क्वेश्चंस डिस्कस करांगे जी। स्टूडेंट, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट लीस्ट का मतलब छोटा, सब तो छोटा नंबर मस्ट बी एडेड टू 1057 1057 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23। इस क्वेश्चन मैं तुहानूं सॉल्व करके दिखाना स्टूडेंट। असी करांगे 1057 नूं डिवाइड करना है 23 नाल, ठीक है ना। 23 नाल डिवाइड करके असी हुण इहनूं चैक करते हैं। देखो ये जाएगा साडा 23 चौका हो जाते जी मेरे ख्याल 92 जी, ठीक है। तो 4 ते गया चला, और ये साडा आ गया इत्थे 3, इत्थे आ जाएगा आई थिंक 1 ते 7 किता डाउन। हुण ये जाएगा जी 23 5 115, कि उस तो बाद नैक्सट ही आंदा 115, जानी 3 5 15 5 2 10 1 11, ये आ गया 2 तो इत्थे भी आ गया 2। एक्चुअली रिमाइंडर हुण कितना बच रहा है? 22। असी की चाहते हैं कि यह नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। हुण एग्जैक्टली डिवाइड तद होएगा, ठीक है ना, की ऐड करिए, ठीक है ना। हुण ऐड करना है तो बड़ा आसान है वैसे तो, पर फिर भी तुहानूं दसदा है कि डिवाइजर विचों जिहड़ा रिमाइंडर है वो माइनस कर दो। डिवाइजर विचों जिहड़ा रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 23 माइनस 22 इज इक्वल टू 1, यानी 23 विचों 22 माइनस कर दो तो 1 अगर इस ऐड कर दिए तो की होएगा? ये साडा नंबर एग्जैक्टली 23 नाल डिवाइड हो जाएगा। आप देखते हैं क्यों, ठीक है ना। जे किते इत्थे देखो 58 हुंदा, ठीक है ना, इत्थे 58 हुंदा स्टूडेंट, तो इत्थे 138 हुंदा,
तो 138 ਨੂੰ अगर असी फिर इनू 6 ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिवाइड करते, देखो सॉरी 6 ਨਾਲ करते मल्टीप्लाई 23 सी ना इत्थे साडा 6 ਨਾਲ 5 ਦੀ बजाय ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ करते 6 ਤੀ 18 6 दूनी 12 ਤੇ 1 13 देखो 138 हो जाना सी। ਇਹਦਾ मतलब जे इत्थे 58 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ रिमाइंडर ਜਿਹੜਾ 0 ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾइंडर ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ मतलब कि नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, बाय 23। इट मीनस द आर आंसर इज वट लीस्ट नंबर 1 असी अगर ऐड करिए तो ये नंबर एग्जैक्टली जोड़ा है 1057 की बजाय अगर 58 कर दिए तो 23 नाल डिवाइड हो जाएगा जी। ठीक है, ये लीस्ट है, ध्यान रखना है कि होर वध नंबर ऐड करके भी आप अगर 23 होर ऐड कर दिए, ठीक है ना, एक तो आप ऐड किया, एक की बजाय आप 24 ऐड कर दिए, देखो तद भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फिर 7 पे चला जाएगा, इस करके ध्यान नाल नोट करनी इसका। नैक्सट क्वेश्चन है 10th, अच्छा क्वेश्चन है जी। हुण थोड़ा जिहा लैवल ऑफ डिफिकल्टी अप होंदा जा रहा है। इन ए डिवीजन सम कहंदा विंडो दे सम विच क्वेश्चन विच डिवाइजर इज 10 टाइम्स। मैं पहला तुहानूं एक डिवीजन एल्गोरिथम भी लिखनी सिखाना है। डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46 फाइंड द डिविडेंड। ठीक है ना, देखो स्टूडेंट, डिवीजन एल्गोरिथम की होंदी है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर पंजाबी च कहंदे बाकी, कोशेंट हुंदा है भागफल, ये हुंदा साडा वांडू बोलदे, ये वनडीज हुंदा है। ठीक है ना, पंजाबी टर्म्स कुछ इस तरह है। ठीक है ना, और मैं हुण देखिया कि सानू एक रिमाइंडर दे रखा, कितना दिता जी 46, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, उस तो बाद साडे कोल की दिता होया डिवाइजर किहड़ा है, ए वाला कहंदा डिवाइजर जिहड़ा हैगा ना, इहनूं मैं छोटा नाम दे देना डी ते इहदा नाम आप रख देना क्यू। ठीक है जी, डिविडेंड नूं आपां एवें रहण दिंदे जिवें हैगा। ठीक है ना, रिमाइंडर नूं मैं लिख देना चलो आर। ठीक है जी, हुण की है डिवाइजर का मतलब डी दी वैल्यू 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स किहदा जी, कोशेंट दा यानी कि क्यू दा। ठीक है, एंड दूसरा की है कि डी कहंदा 5 टाइम्स है, किहदा बई, रिमाइंडर दा, आर दा। हुण दोनों डीआं नूं अगर असी रिमाइंडर सानू पता है, इत्थे होर काम सौखा हो गया। रिमाइंडर कितना है 46, ये हो गया साडा 230, 6 5 30 ते 5 चौका 20 ते 3 ठीक है 230 हो गया। इसका मतलब डिवाइजर की कीमत यदि वैल्यू साढ़े को आ चुकी है जी। ठीक है ना, रिमाइंडर भी सानू पता है, सिर्फ आ कढ़ना कोशेंट बाकी रह गया। ठीक है ना, हुण कोशेंट कढ़न लई सानू ये पता है, देखो कितना जी, डिवाइजर असीं हुणे कढ़िया कितना 230 इज इक्वल टू 10 इंटू कोशेंट। ये 0 ना 0 कट गई तो क्यू की वैल्यू साडी आ गई जी, कितनी आ गई 23 आ गई जी। हुण साडे कोले क्यू की वैल्यू 23 आ चुकी है, तो डी की वैल्यू साडे कोले 230 हैगी है। ठीक है, मैं इत्थे देखो लिखण जा रहा, आपां लभना की है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है जी। ठीक है, कोशेंट कितना आया जी साडे कोले 23 आया जी। ठीक है जी, और डिवाइजर कितना आया सीगा, आई थिंक दिस इज 230, तो रिमाइंडर साडे कोले ऑलरेडी गिवन है 46 जी। 23 नूं 23 ना करिए तो 529 ते नाल लगाती 0 प्लस एच कीता जी 46, ये होगा जी 5300 ते 36, यानी साडा आंसर हो गया सी जी। ठीक है, ये होगा डिविडेंड देयरफॉर इज इक्वल टू 5336। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, वध तो वध मेहनत नाल करो, क्योंकि यही क्वेश्चन सानू बाकी लोगों नालों वखरा कर देंगे। अगर असी सॉल्व कर दें तो साढ़े ए प्लस पॉइंट हो जाएंगे, तो हरेक क्वेश्चन जो हरेक स्टूडेंट जोड़ा वो नहीं कर सकता। कई क्वेश्चन साढ़े तो नहीं होंगे, पर जे असी कर जाने तो असी दूजे स्टूडेंट्स नालों बहुत अगे मैरिट दे विच लंघ जावांगे। इस करके किसी क्वेश्चन नूं अंडर एस्टीमेट नहीं करना। जो कोई क्वेश्चन औखा लग रहा है उन्होंने वार वार करो तो ध्यान नाल करो जी। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां लवांगे क्वेश्चन नंबर 11।
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 6723। वट इज़ द ग्रेटर नंबर। स्टूडेंट इनू करन दा एक तरीका है जिहड़ा लेंथी है वो है कि दो कंसेक्टिव नंबर असी सपोज कर लांगे ऑड। मान लो पहला ऑड नंबर असी ले लिया x तो दूसरा कितना हो जाएगा उस तो दो वध। जे ए एक्स ऑड नंबर पहला है तो इस तो दो वध हो जाएगा। इन्हां दोनों का प्रोडक्ट जिहड़ा है वो सानू दिता होया जी 6723। ये बन जाएगी स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उधरों असी इधर लेते इनू तुसी करोगे सॉल्व, काफ़ी टाइम लगूगा तो ये तुहाडे दो रूट आ जाएंगे। ठीक है ना। हुण ये चों दो रूट फिर असी सिलेक्ट करांगे कि साडे जिहड़े है वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। अगर नैगेटिव है तो ड्रॉप करांगे। ठीक है ना। तो वो नंबरां विचों एक नंबर जिहड़ा असी ग्रेटर नंबर लभना है। मान लो साडे कोले 81 आ जाता आंसर तो 83 साडा फिर आंसर हो जाएगा जो कि है। ये तुसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th वाला मैथड यूज करके कर सकते हो पर इट टेक्स टाइम। ये तुसी खुद करना है। मैं इहदा तुहानू शॉर्टकट मैथड दसन लग्या हाँ जी। ठीक है ना। शॉर्टकट स्टूडेंट की है कि साडे कोले एक्चुअली आ आंसर दे रखे 4। अगर चारे आंसर दिते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है कह लो। अगर नन ऑफ दिस दिता होंदा तो साडे लई प्रॉब्लम सी। ठीक है ना। हुण 89 अगर वो कहता ग्रेटर नंबर इन्हां विचों है तो अगर 89 ग्रेटर है ये ऑड नंबर है तो जिहड़ा छोटे वाला फिर इस तो एक घट होएगा 87 होएगा। जे 85 ग्रेटर है तो फिर इस तो दो घट वाला वो होएगा साडा समालर होएगा। ठीक है ना। ये ग्रेटर है। इवें अगर 91 ग्रेटर साडा आंसर है तो 89 छोटा नंबर होएगा। फिर इवें 83 अगर ग्रेटर है साडा आंसर मान लो तो फिर 81 जिहड़ा इस तो छोटा नंबर होएगा। हुण असीं देखिए इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट इहदे पिछे 3 आ जाएगा पर साडे तां देखो 3 ही है ना पिछे। इहदा मतलब ये आंसर साडा हो सकता है। इन्हां नूं मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर पिछे आ जाएगा 5 साडा 30 है ये आंसर नहीं हो सकता। इनू करांगे तो 9 एकम आ जाएगा 9 तो यह भी साडा आंसर सानू 3 चाहिए। इनू करांगे तो फिर की आ गया साडा 3 आ गया। हुण साडे आंसर रह गए 2। दोवां दे विचों असीं हुण तुक्का मारीए कि असीं किहनूं मल्टीप्लाई पहलां करिए। चलो मैं इनू करदा जी पहलां मल्टीप्लाई। ठीक है ना। मैं प्रॉपर करके दिखाना तुसीं फटाफट भी कर सकते हो। हलो 3 एकम 3 तो 8 एकम 8 क्रॉस हाँ जी। 8 3 24 2 जी 8 8 64 तो 2 कितना हो गया जी 66। 3 8 तो 4 हो गए जी 12 तो 7। हलो जी साडा आंसर फिर केड़ा हो गया 83 इज द आंसर। वो कहना सीगा दो कंसेक्टिव नंबर है ऑड। देखो दोनों ही ऑड है। ठीक है ना। उन्होंने प्रोडक्ट कहता कि 6723 है तो असी ग्रेटर दसना तो ग्रेटर साडा फिर केड़ा है 83 है। तुसी इहनू भी चैक कर सकते। हाँ स्टूडेंट हुण आपां लवांगे क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14। हुण 2 डिजिट नंबर केड़ा हुंदा स्टूडेंट देखो किवें लिखिया जांदा है। ठीक है ना। ये लिखिया जांदा यानी कि 2 डिजिट नंबर हुंदे केड़े देखो सब तो पहला 10 तो शुरू हुंदे हन ते 99 तक ये चलते जी। 10 to 99 दीज आर कॉल्ड 2 डिजिट नंबर। ये साढ़े देखो तीनों ही आंसर टैली कर रहे हैं इन्हां दे विच ही आ रहे हैं। ठीक है ना। पर असी तां की लभना वट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। प्रोडक्ट जिहड़ियां 2 डिजिट्स दा 2 डिजिट्स जिहड़ियां 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है। हुण साडी गल आउंदी हैगी है कि असी 2 डिजिट नंबर सपोज किवें करदे हां। असी मान लिया कि ये साडा y हैगा यूनिट प्लेस ते x हैगा साडा टेंस प्लेस ते। y नूं असी 1 नाल मल्टीप्लाई करता। ठीक है ना। ये यूनिट प्लेस ते आ गया प्लस इहदे च की जोड़ता 10 यानी 10 इंटू x तो यह साडा हो गया एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर जिहड़ा आपां जिहदी ये गल करदा है। हुण ये कहंदा भी इन्हां दीयां जिहड़ियां डिजिट है ना उन्हां दा सम कितना है यानी x प्लस y का सम सानूं दे रखा है 14। ठीक है। और कहता भी डिफरेंस कितना देखो डिफरेंस ऑफ द बिटवीन दैम इज 2 तो इन्हों दोवां का अंतर जिहड़ा वो सानू 2 दे रखा है। ठीक है जी। हुण आपां इन्हां विचों x ते y की वैल्यू कढनी तो आपां काहदी वैल्यू लभनी है
प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, असी आ वाली ये वैल्यू लभनी है, यानी द व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर। इन्हों देखो अगर असी ऐड करांगे तो ये वाई ना वाई कटी जाऊ तो ये रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 तो x आ गया साडा 8 तो y फिर साडा दिसी जाता है ना, इत्थे y x लिखांगे 8 तो उधर जाके y साडी रह जाएगी 6 तो प्रोडक्ट फिर कितना आ गया साडा 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48, यानी कि साडा आंसर तक गया आ जी। ठीक है ना, ये असी ये साडा प्रॉपर मैथड है जिहड़ा असी कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट किया थोड़ा जिहा भी, तो ये तुसी डिटेल समझना तो कोई गल नहीं, मैनूं दोबारा भी तुसी पुछ सकते हो। हुण आपां इहदा होर शॉर्टकट सोचण दी कोशिश करिए जी। असी देखिया कि इन्हां विचों किहड़ा नंबर है जिहदियां जिहड़ियां 2 डिजिटां ना, ठीक है ना, इन्हां विच नहीं हो नंबर, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट लिख के रखा है, क्योंकि साडा की लिखा है प्रोडक्ट लिखा। साडा एक्चुअली नंबर की सी देखो 10x प्लस y, ठीक है ना, x की वैल्यू साडी कितनी आई सी 8 तो y की कितनी आई सी 6, ये साडा एक्चुअली नंबर है 80 प्लस 6 86 है जी। 86 दियां 2 डिजिटल का जोड़ कितना देखो 14 है, डिफरेंस कितना है 8 विचों 6 गए 2, प्रोडक्ट कितना देखो हाँ जी 8 सिक 48, ये बिल्कुल देखो ये इस तरह से कर लिया, टैली भी मैं करता। हुण गल है कि साडा ये आंसर इसे नहीं मैं वेरीफाई करके दिना तुहानूं कि ये आंसर असीं किवें चैक कर लिया। मैं इहनूं कीता कि क्योंकि प्रोडक्ट दिता होया है, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट है तो मैं ये ऐसे 2 फैक्टर सोचने की कोशिश कर रहा जिन्हां दा डिफरेंस जिहड़ा ना वो 2 होवे ते सम जिहड़ा वो 14 होवे। तो देखो मेरे दिमाग च भी यही आऊगा, एक 8 आएगा तो एक 6, जां एक 6 तो एक 8 आ गया। देखो इन्हां दा सम करो तो 14 है, डिफरेंस करो तो 2 है जी। ਇਹਦਾ मतलब साडा आंसर ए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 into 48 ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, 2 into 24 ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ 10 into 16 ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 into ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ 12 चौक 48 है ना, यह भी बनता है, पर नाल दी नाल रिजेक्ट भी करी चलो। देखो डिफरेंस ਇਹਦਾ 47 है, ਇਹਦਾ 22 है, ਇਹਦਾ 13 है, ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਚਲੋ फटाफट, ठीक है ना। तो फिर करते करते असी जो इतने 5 तो होंगे ही नहीं डिवाइड, 6 तो आवांगे देखो सानू 8, तो देखो यदा क्लीयर मिल गया ना सानू कि इन्हों का सम करिए 14 तो डिफरेंस इसका 2 है, तो साडा आंसर 48 हो जाएगा। असी ये प्रैक्टिस करांगे ना होर सम्स लैके, तो ये सम सानू बहुत ही आसान और बड़ा शॉर्टकट तरीके नाल भी हो जाएगा। अदरवाइज असी इसनूं विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड भी कर सकते हाँ। हाँ जी स्टूडेंट, ये साडा सी लास्ट क्वेश्चन अज दे सैशन का। तो वीडियो देखण ते सुन लई तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी स्टूडेंट, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट DLED ਤੇ एंट्रेंस टेस्ट 'ਚ अपीयर हो रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਰਪਲ ਲਾਈਨਸ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ फ्री ऑफ कॉस्ट जी आप हैल्प कर रहे हैं तुहाडी ਉਹਦਾ फायदा ले सकन। तो तुहाडी कोई भी प्रॉब्लम है जी समझ नहीं आ रही या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो तुसीं मैनूं WhatsApp मेरे नंबर पर WhatsApp करके लिख के भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच।